Assalamu alaikum to everyone. Assalamu alaikum. Our guest for this show today is Aisha, Asim, Imdad. Assalamu alaikum, Aisha. Welcome to the show. Walaikum Assalam. Thank you. Thank you so much. Aisha is an extremely talented artist and she's doing some very interesting and important work. So, today we will begin by introducing you to Aisha, Asim, Imdad. Aisha is a visual artist, crafts and heritage expert, and she is also an educationist. She has earned a BFA and then an MA honors in visual arts from the National College of Arts, Lahore. She is currently an associate professor at ComSats University in Islamabad, where she has served as chairperson, Department of Art and Design. And most importantly, because we are sharing her work with you as well, and we love the work that she's doing. She is the owner of Chahar Bagh, an online designer brand which focuses on the promotion of crafts and cultural heritage by working with village communities in Pakistan. She has exhibited her art, and we will also be sharing her art with you. She's had numerous exhibitions. She has been teaching art history, design, and cultural studies for more than a decade, so very experienced in education and in teaching. Very intellectual as well, because her papers on traditional crafts and conservation and the study of traditional decorative building crafts of Pakistan have been published nationally and internationally. And she has played a leading role in various international projects in the field of crafts, working as a crafts expert and principal designer. She has also been conducting a series of workshops since 2010 in southern Punjab to train master trainers and to redesign and contemporize local crafts, to alleviate poverty, and to generate economic opportunities for the local communities of the region. So these are only some of the things that we can, in a very limited time, introduce Aisha with. She is amazingly accomplished. And I want to tell the audience that today Aisha is joining us all the way from the United States of America. And we really appreciate the time that, Aisha, you have taken out to grace our show with your presence and to honor us. Welcome again. Thank you, Saadia and Sameera both. I'm grateful कि आपने मुझे time दिया और so here I am. थैंक यू आपके So, टाइम निकालने का. लाइक हम पूरे सब कॉन्टिनेंट पे छाए हुए हैं तीनों, पाकिस्तान, अमेरिका, यूके. okay, so Aisha, I was looking at the beautiful art that you've shared with us, and it is just amazing. And I'm sure our audience can see how amazingly talented you are. Um, so my first question to you would be, what kind of mediums have you used in your artwork? And which one in particular do you prefer? आपको क्या medium ज़्यादा अच्छा लगता है बाकी सबसे? वैसे तो I have used all kind of mediums, but my preferred medium for my art is watercolor. Because मैं by training from NCA printmaker हूँ, so उसमें I work on all kinds of inks and oils and everything, and acids and everything जो आपको पता है कि print making studio में होते हैं, वो सब use करते हैं. लेकिन they're quite hazardous for health and different ways.
So That's true. I kind of developed a little bit of allergic reaction once. Oh. उसके बाद से then I Hmm. started only working in water mediums. And I actually love it because उसमें इतना मतलब इतना कुछ हो सकता है which I have explored in my paintings, all the different ways by through creating different textures and different kind of उसके जो एस्पेक्ट्स हैं लाइक ट्रांसपेरेंट ओपेक जिसको हम हमारी मिनिएचर पेंटिंग के अंदर भी बहुत ये डिफरेंट स्टाइल्स में वाटर मीडियम्स यूज होते हैं वो सब मैंने यूज किए हैं माय वर्क इज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय द मिनिएचर पेंटिंग्स बोथ पर्शियन एंड मुगल जिनको एंड फ्रेस्को पेंटिंग्स तो उनके Right. उसका जो है स्टाइल उसको मैं अपने आर्ट वर्क के अंदर एमुलेट जरूर करती हूँ और उसी के साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है आर्ट क्रिएट करती हूँ राइट उसको फिर आपने मॉडिफाई भी किया हुआ है बिकॉज आई वाज लुकिंग एट जो आपने शेयर किया है हम लोगों के साथ राइट इसमें आपका एक अपना एलिमेंट है आपका इंडिविजुअलिटी ऑब्वियसली वो तो हर आर्टिस्ट का एक अपना स्टाइल होता है और वो आप यूज करते हैं मेरा जो कॉन्सेप्ट है ज्यादा आर्ट के अंदर वो यूजुअली इट इज आई वर्क I like to paint gardens which are not normal gardens जो कि आप बाहर देख रहे होते हैं these gardens are more spiritual in nature उनका अच्छा उनका मेरा मैंने बहुत ज़्यादा देखा कि जो हमारी इस्लामिक आर्ट है या हमारा इवन मुगल आर्ट है फ्रेस्को पेंटिंग्स उसमें आई सॉ दैट we have beautiful floral patterns and different kinds of तो वो सब देखकर आहिस्ता आहिस्ता I developed this understanding about our इस्लामिक जो आर्ट है उसके अंदर क्यों हम ब्यूटी को इतना ज्यादा उसके ऊपर एम्फोसिस है तो I kind of started looking at it in and understanding it तो उससे मुझे एक ये समझ आई कि जो हर इंसान है उसको अपने अंदर भी खूबसूरत गार्डन क्रिएट करने की जरूरत है टू बिकम बिल्कुल ह्यूमन बीइंग और अगर आप वो गार्डन अपने अंदर एक अच्छे और खूबसूरती अपने अंदर पैदा कर लेते हैं तो आपको हर चीज आपके इर्द गिर्द खुद ही खूबसूरत हो जाती है बिल्कुल बिल्कुल That is like basically if you have positivity in your life and you look at things positively so आपके अंदर भी वही पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है वो ही आपका एक बाग है जिसको आपने खुद पानी देकर और उसको आपने खुद से बड़ा करना है उसको उसको आपने उसका ख्याल रखना है सो वो एक जो बाग है I like to paint that in my paintings basically and it's very evident I mean there's this peace there's this beauty in your paintings which is quite fabulous and amazing तो जो आप कलर्स यूज कर रहे हो आयशा वो कोई इज देयर एनी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और थॉट बिहाइंड इट आप क्या सोच के चूज कर रहे हो जो कलर्स आपने यूज किए हैं पेंटिंग्स में again the colors mujhe I just love colors everything about colors I just love it and राइट while I am painting I usually have some theme in it like my latest work it is called the Red series Celestial Gardens of Soul the राइट Red series usme red again is a color which has many meanings many उसको मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ कल्चर्स में उसको देखा जाता है for me it is just a beautiful color and it can be a beautiful uh, place to be in your own self so I just use that color as my main color red series में और उसके अंदर ये जो कलर्स हैं इनकी एक और भी पीछे बैकग्राउंड ये है कि आप अगर हमारी जो फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं या हमारी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं उनके अंदर काफी ब्राइट कलर्स और बैकग्राउंड्स होते हैं
like oranges and reds and blues, even black. So they are used in a very beautiful way. So they just change the concept of color के red violence का color है या ये कोई बहुत passion का That's so color. true. So Right, right. you just look at it in a different way. And मैं जब उनको फिर explore करती हूँ color को अपनी series में, तो then they reveal many things to me in their own way while I'm painting. So ये एक process है जो कि painting के दरमियान में अपने आप को खुद भी reveal कर रहा होता है मेरे साथ. अच्छा, तो ओवर टाइम, फ्रॉम द टाइम, जैसे जब आप एनसीए में स्टूडेंट थी, तो आपकी आर्ट आपके ख्याल से, इन योर ओन ओपिनियन, कैसे डेवलप हुई है? लाइक अगर आप ट्रेस करो बैक टू योर एनसीए डेज ऑल द वे टू आप जो अभी वर्क कर रहे हो, एंड आई थिंक यू प्रॉब्ली क्रिएटिंग अ होल आर्ट वर्क की सीरीज सो दैट यू कैन एग्जिबिट, आई होप. So, if you can just share that with me and Sameera and the audience. ऐसे कि हर इंसान के अंदर वो चीज पहले से होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू होती है. वो ये नहीं होता कि आप एक दिन सुबह उठे और आपने कहा कि आज मैं बाग ही पेंट करूंगी. नहीं, वो I hope not. you have it in you somewhere, and you may not be aware of it, but you have it there, so you are doing something with it. at at NCA जब मैं थी तो उस वक्त इतना मुझे खुद भी नहीं अवेयर थी मैं इसके बारे में, लेकिन आई वॉज अवेयर एट सम लेवल कि ये मैं उसको एक्सप्लोर, मेरा जो थीसिस था इट हैड, इसमें पहली दफा मुझे थोड़ा सा इसका एक एस्पेक्ट नजर आया अपने आप को, जो अब मैं अपना पिछला काम देखती हूँ तो आई रियलाइज कि यस इट वाज देयर. I just was not so aware of it the way I am now, because Right. उस वक्त आप इतना आपने पढ़ा नहीं होता जिस तरह से आपने पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है, किताबें पढ़ी हैं, आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस बहुत होता है, तो उससे आपको नई अपने बारे में भी नई बातें पता चलती हैं. तो उस वक्त तो बहुत यंग और इनोसेंट से आप होते हैं, आपको कितनी बातें नहीं पता होती, तो यू आर So जस्ट true. लाइफ इन अ डिफरेंट वे. तो वो So true. तो उस वक्त था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इट इवॉल्व फॉर मी. For me, I don't know for other people how it works, but for me, it evolved over a period of time, and I slowly realized that nature is the best place to look for your answers in that way. So I used to look at nature. I used to paint various landscapes also in that. तो देख के तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये मेरा कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता चला गया, एंड until I realize कि मैं कर क्या रही हूँ. राइट. अच्छा, इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज साइकोलॉजिकल वेलबीइंग के लिए भी जो आपका ये कॉन्सेप्ट है ना, ये आप अपने ऊपर खुद ही लगा रहे हो, एंड दिस विल कीप यू मेंटली वेरी हेल्थी. बिकॉज एक जिसको मैं यूजुअली लोगों को कहती हूँ कि क्रिएट अ हैप्पी प्लेस. अपने माइंड में आप लोग एक हैप्पी प्लेस बनाएं, इमेजिन करें, उसमें नेचर हो, उसमें गार्डन्स हो, और आप थोड़ी सी चीजों से स्टार्ट करें और फिर उसमें ऐड करते जाएं. सो दैट्स द क्रिएटिव प्रोसेस जो बिल्कुल आप आयशा डिस्क्राइब कर रहे हो, राइट? एक्सेप्ट कि जब आप मेंटली वो बना रहे हो तो देन यू आर आल्सो पुटिंग दैट इन योर पेंटिंग्स एंड इन योर वाटर कलर्स. सो वो देखो, और जिस तरह हमारी ऑडियंस ने भी देखा होगा कि उनको देख के यू इट मेक्स यू फील गुड. सो इस किस्म का जो आपका काम है, I think even in art therapy, if you look at work like this, so it makes a lot of sense and it's very helpful to people. So you must be an amazingly calm person and in the happy place that I was talking about, right? I try my best to remain in that place, because आप जब काम कर रहे होते हैं, जितना जिस तरह से मैंने लाइक इतने डिफरेंट चीजों में काम किया है, तो स्ट्रेस भी काफी होता है लाइफ. हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल. उसको केटर करने के लिए आई फाइंड माय आर्ट वर्क वेरी पीसफुल. व्हेन Yes. I just go in my studio, and
everything just leaves me. I just हम्म in that हैप्पी प्लेस जहाँ पे बैठकर मैं सिर्फ अपने अंदर को देख रही होती हूँ, एंड देन आई एम हैप्पी बिकॉज हम्म वो उसको नर्चर करने का मुझे मौका मिल रहा होता है अपने आप हम्म को। हम्म अच्छी सी फीलिंग होती है मेरे लिए। हम्म I just try to be in that place and work. अभी जैसे आजकल I am just painting mostly and अच्छा अपने बहुत ज्यादा पेंटिंग पे आजकल मैं काम कर रही हूँ बिकॉज बस वो एक वक्त आता है कि यू जस्ट नो कि अब ये करना है मैंने, जो बस आज हम्म मेरे ऊपर वो वक्त आया हुआ है कि मैंने ये काम करना है, तो बस हम्म पेंट कर रही हूँ बस। हाउ वंडरफुल। अच्छा मुझे आप ये बताओ आयशा कि व्हाट और हु इंस्पायर्ड यू, वाज देयर सम इंस्पिरेशन जिससे आपने डिसाइड किया कि आप आर्ट में जाओ, जिससे आपने सोचा कि आप उसके आगे फिर एजुकेटर बनो, एजुकेशनिस्ट बनो, सो व्हाट इज योर इंस्पिरेशन? मेरी लाइफ में ना बहुत ही इंस्पायरिंग लोग मेरे इर्द गिर्द मौजूद थे। हाउ वंडरफुल। Yeah, I was very lucky in that way. My khala, my mother, they were a big source of inspiration for me. My khala, she was like the first lady surgeon of Pakistan, and उन वाओ। वक्त जब वो सर्जन बनी, पाकिस्तान में कोई और खातून नहीं थी सर्जन। My mother, ये जी ये कब कब था और उनका नाम भी प्लीज शेयर कीजिए। जी, मेरी खाला का नाम डॉक्टर निसार फातिमा था। आ and, ओके। बहुत फेमस थी वो लाहौर हाँ में, हाँ अपना बिल्कुल। नाम था। तो आई हैड अ वेरी लविंग रिलेशनशिप विद हर, एंड एनसीए में भी जब मैं थी तो वो मुझे रोज मिलने आती थी। अच्छा। Now she and my mother both have passed away, but they had a very उनका मेरी लाइफ के ऊपर काफी इम्पैक्ट है। और अच्छा। उसके बाद माय मदर, शी वाज बाय, वो उस वक्त उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया जब खवातीन पढ़ाई नहीं करती थी। हम्म। वेरी accomplished लेडी, एंड देन उन्होंने उस वक्त अपनी लाइफ में इतना बड़ा वो काम किया जो मेरे लिए आज तक मैं कहती हूँ कि वो बहुत बहादुर थी। हम्म। शी वॉज रनिंग हर ओन फार्म इन पाकिस्तान अलोन। अच्छा। उनको शौक था, तो हम्म उसने अपना, लाइक उस जमाने में आदमी घबराते थे कि भाई हम फार्मिंग करेंगे और हम्म। मुश्किल है गांव में जाकर। शी हैड हर ओन farmhouse and she would live there and she would run her own farm. My father was in job so he couldn't be there, so she said I will. राइट। So वो खुद अपना फार्म रन करती थी और शी वॉज वेरी गुड एट इट, एंड बहुत से लोग उनसे बड़े इंस्पायर होते थे। बहुत बहादुर भी थी कि अकेली इस तरह इतना बड़ा काम कर रही थी हाँ। माहौल में, पंजाब के रूरल एरिया में जाकर इस तरह रहना, बट शी और कहाँ पर फार्म था आयशा, इफ आई कैन आस्क यू? साहिवाल। अच्छा साहिवाल। वाह, वहां वो अकेली रन कर रही थी, बहुत ही बहादुर थी। फिर आपने सीखी बहादुरी उनसे, कोई इंस्पायर हुए आप? करेज। बस उनसे यही सीखा कि जो करना चाहते हो लाइफ में उसको कर लो। या। मतलब डोंट बी लाइक दिस के सोचते रहो कि अगर हम्म करना है तो फिर कर लो उसको, उसके हम्म ऊपर सोचने की जरूरत नहीं। इफ यू रियली आर पैशनेट अबाउट समथिंग देन जस्ट गो अहेड एंड अचीव इट इन योर लाइफ। That बिल्कुल बिल्कुल। I learned from her. She wanted to do it. She went out and she did it. She was हम्म। not afraid कि वो खातून है, अकेली कैसे रूरल पंजाब में रहेंगी। आजकल तो फिर भी खवातीन के लिए काफी आसानियां हो गई हैं, एटलीस्ट बिल्कुल बिल्कुल। में कि वो अकेली ट्रैवल कर सकते हैं। उस जमाने में हम्म तो जबकि मैं बात कर रही हूँ 70s एंड 80s की, तो हम्म। it was a different kind of atmosphere for women to be बिल्कुल। रूरल एरिया जहाँ लोगों ने कभी खवातीन को घर से बाहर ही नहीं निकल। राइट। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली।
वाह, दिस इज अमेजिंग। अब ये देखो, आपने कभी शेयर नहीं किया, मुझे पता भी नहीं था। सो दिस इज अमेजिंग दैट यू हैड such amazing female role models. You're Oh, very lucky, yes, mashallah. yes, that was something which really inspired me कि हमारे घर में औरतों को लाइक पहले दिन से बहुत इज्जत और काम, Hmm. ये जो एक मेरे एल्डर्स ने घर में एक वो रस्म डाली हुई थी, तो वो मेरे Hmm. लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। मेरी जो नानी थी वो खुद अनपढ़ थी, उन्होंने खुद पढ़ा Hmm. नहीं था, लेकिन Hmm. शी टोल्ड मी वंस के मुझे बहुत शौक था कि मेरे बच्चे पढ़ें, तो शी टोल्ड मी कि मैं बैठ जाती थी और मैं इनको सामने बिठा देती थी, तो कहती थी पढ़ो, सो दे वुड सिट एंड स्टडी Ah. फ्रंट ऑफ हर। तो शी मेड श्योर, और उनके सारे बच्चे माशाल्लाह बहुत ही सक्सेसफुल पीपल इन देयर ओन राइट बने, एंड दे Hmm. contributed to the society in their own ways. So I'm glad that they were my elders, and I learned so much from them. Mashallah, you were very lucky, and it's so nice to hear of these positive role models, और कि आपकी नानियाँ, आपकी माएँ, खालाएं जो कि यंग वुमेन को इतना इनकरेज कर रही हैं और उनको दिखा रही हैं थ्रू देयर ओन लाइव्स कि किस तरह आप काम कर सकते हो, अपने आप को बेहतर कर सकते हो. इट्स ट्रूली अमेजिंग. अच्छा जी, तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी पर्सनल थोड़ी सी जो एनेक्डोट्स निकली हैं, वो तो और भी ज्यादा इंसाइट्स दे रही हैं इनटू योर आर्ट, इनटू व्हाई यू आर डूइंग चहार बाग, जिसमें आप इतनी ज्यादा सोसाइटी की अपलिफ्ट और उसकी हेल्प कर रहे हो. What do you think of your learning experiences in the National College of Arts? I know it's changed a lot. जब हम लोग थे तो बहुत डिफरेंट था उस टाइम पे. हमारे प्रोफेसर्स भी बहुत बड़े बड़े नाम थे, जैसे आप मैडम वंडल कह रही हैं, मैडम सलीमा हाशमी थी, और बहुत सईद अख्तर हमारे टीचर थे. बहुत वी वर बड़े वेरी बड़े लकी. बहुत लकी थे कि उन्होंने हमें खुद पढ़ाया हुआ है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल. अब इस तरह से मेरे ख्याल में है, लाइक आरिम नईम उस दिन आपके शो में थे, मैंने उनका हाँ हाँ, ही आरम इज नईम की तो अमेजिंग आर्टिस्ट, एंड आई एम श्योर उसके स्टूडेंट्स जो हैं दे आर वेरी लकी टू हैव हिम देयर। हम्म. ही वाज माय क्लास फेलो एनीवे। तो वो ये एनसीए का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल में। मेरी जिंदगी का एक बहुत ही अच्छा लर्निंग टाइम जो है वो एनसीए था। बाद में बहुत चीजें लर्न की, लेकिन वो एक बहुत अच्छी यादें हैं मेरे लिए, और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी ना, वो दोस्तियां थी। उसके अलावा जो आपने डिफरेंट वहाँ पे जो लाइक डिजाइनर्स थे, आर्किटेक्ट्स थे, आर्टिस्ट थे, they were all intermingling and meeting each other at certain राइट. times। आपका काम एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होता था, जो एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ थी एनसीए की, जो आई बिलीव के एनसीए को ग्रेट बनाती थी, वो ये चीज थी। और अभी आप पूरी दुनिया में देखें, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो हमें काफी बाहर आते हैं तो एज देता है, क्योंकि एनसीए के जो हमारी एक ऑल राउंडेड जो अप्रोच होती है, वो हमें एनसीए में यूनिक बना बिल्कुल. देती है। जो हम लोगों ने ये यहाँ से सीखा है कि हम आर्किटेक्ट के साथ भी काम कर सकते हैं, हम डिजाइनर के साथ भी काम कर सकते हैं, हम फाइन आर्टिस्ट के साथ भी काम कर सकते हैं, हम डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हैं। जो कि मैं तो एक आपके सामने एग्जांपल हूँ कि मैंने कितनी फील्ड्स में जाकर काम किया, और वो इसीलिए हुआ क्योंकि एनसीए में ये सिखाया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल. तो वहाँ पर इस तरह से डिफरेंट जो एनवायरनमेंट्स हैं, डिफरेंट फील्ड हैं, उनमें कैसे अपने आप को उसमें रख कर काम करना है, तो वो हमने बहुत अच्छी लर्निंग उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, जो आपकी ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं और जो एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं एट एनसीए, तो उसके बाद जो अब आप टीच कर रहे हो, तो उसमें एक तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग, कितनी देर हो गई आपको? अब तो हो गए हैं, मैं 2007 में मैंने टीच करना शुरू किया था। आई स्टार्टेड माय टीचिंग कैरियर फॉर्मली फ्रॉम एनसीए रावलपिंडी। राइट.
वहाँ मैंने 1.5 साल काम किया है, 1.5 years. Then I moved on to ComSets because they needed आर्टिस्ट. अभी उनका वो दे वर ट्राइंग टू ओपन एक वो साइंस यूनिवर्सिटी थी. मुझे challenges पसंद है, so they wanted to open a department of architecture and design and Okay. art. So we wanted to go into that, and they were like not sure how to do it. At that time, मैं और एक और मेरी colleague हैं, we shifted there. उन्होंने एक डिपार्टमेंट खोला था and they needed people who should come अच्छा. and work there. So I joined them at that time and I never regretted it because मुझे वहाँ बहुत लर्न करने को मिला और बहुत कंट्रीब्यूट करने को मिला बिकॉज वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन मैंने ही एंड में खोला. आर्किटेक्चर में हम थे, लेकिन आर्किटेक्चर से आहिस्ता आहिस्ता आई रियलाइज के हमारा एक अलहदा आर्ट एंड डिजाइन का डिपार्टमेंट आइडेंटिटी जो है उसकी अपनी होनी चाहिए. सो वी केम अप विद द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन और उसको उसमें उसने बहुत उस एरिया को लाइक इस्लामाबाद केपी के पूरे इस एरिया में बहुत कंट्रीब्यूट किया. हमारे पास पूरे पाकिस्तान से बच्चे आते हैं, लेकिन अच्छा. खास एरिया जो है ये कश्मीर और इन सब एरिया से बहुत बच्चे हमारे पास आते हैं. एंड इट्स अ गुड मिक्स क्योंकि हर कोई तो एनसीए नहीं जा सकता. बिल्कुल. ये एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि अब काफी ऐसे आर्ट इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं पाकिस्तान में जहाँ पर आप इस क्योंकि इसकी बहुत अब डिमांड है, बहुत नई फील्ड्स आ गई हैं डिजाइन में, आर्ट्स में. तो उसके लिए बहुत से उसकी डिमांड है. स्टूडेंट्स वांट्स टू कम एंड बी एन आर्टिस्ट और अ डिजाइन. सो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कॉमसेट्स ने प्रोवाइड किया और वहाँ पे मैंने काम किया एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिड इट. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. एंड यू आर राइट कि हर कोई तो एनसीए नहीं जा सकता, तो इट्स वेरी गुड कि और इंस्टीट्यूशंस भी खोली जाएं. नहीं, ऑप्शंस होनी चाहिए. इट्स नॉट जस्ट बिल्कुल. आपको दाखला नहीं मिला. समटाइम्स पेरेंट्स डोंट वांट टू सेंड यू सो फार अवे एंड इट्स राइट. many reasons जहाँ पे. और इतना टैलेंट है हमारे मुल्क में, हमारे बहुत ज्यादा. बच्चे ज्यादा टैलेंटेड है माशाल्लाह. सो इट्स अ गुड थिंग कि ऐसी इंस्टीट्यूट्स ने अपने बड़ी यूनिवर्सिटीज ने, क्योंकि कॉमसेट्स इज अ यूनिवर्सिटी, तो बिल्कुल. यूनिवर्सिटीज ने अपने अंदर जगह बनाई है आर्टिस्ट और डिजाइनर्स के लिए. तो दैट्स अ बिग थिंग. काफी इस तरह से खुल गए हैं जो कि और ये भी रिसेंटली लास्ट 10 years में हुआ है. So if you can just tell us a little bit about what Chahar Bagh is. चहार बाग जो है वो एक मेरा यूं समझने का बेबी है जिसको बनाने में काफी इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है. स्टार्ट में मैं एक प्रोजेक्ट में मुझे काम करने को मिला साउथ पंजाब में, जिसमें मुझे हमारी एनसीए की प्रिंसिपल थी मैडम साजिदा वंडल. बिल्कुल. इनवाइट किया कि आकर उसके अंदर मेरे साथ काम करो साउथ पंजाब में. सो आई वर्क विद हर in the field of crafts in South Punjab. तो वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और उसमें यूनेस्को के लिए एक रिपोर्ट बनानी थी अबाउट साउथ पंजाब और उसके जो क्राफ्ट्स थे वो मुझे उन्होंने कहा कि आप बना कर दो. सो आई स्टार्टेड वर्किंग ओवर देयर इन
साउथ पंजाब, आई वेंट देयर, फील्ड में सारा जाकर खुद सारा काम किया, एक एक जगह गई, काफी ज्यादा मुझे 3-4 महीने वहां काम करना पड़ा। तो उसमें मुझे एक चीज जो बहुत ग्लेयरिंगली क्लियर होती हुई नजर आ रही थी कि हमारे पास बेतहाशा क्राफ्ट्स हैं और वो उनके बारे में आम लोगों को पता भी नहीं है, मतलब नहीं पता, बिल्कुल। और मैं अपने आप को काफी आर्टिस्ट समझती हूँ, बट आई वाज लाइक रियली शॉक्ड कि हमारे पास इतनी चीजें हैं और हम उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। ये तो बहुत ही एक बहुत बड़ा मुझे लग रहा था कि एक इशू है। बिल्कुल। बहरहाल फिर वेरियस प्रोजेक्ट्स थे, उनमें मैं मुख्तलिफ वक्तों में काम करती रही और वहाँ पे काफी ऑलमोस्ट 8,000 विमेन हमने ट्रेन की। ये जो मैंने आपसे वर्क की बात की उसके अंदर मास्टर ट्रेनर्स हम ट्रेन करते थे और मास्टर ट्रेनर्स जो थे उनका मकसद ये होता था कि वो फिर जाके अपनी विलेज कम्युनिटीज में अपने जो गांव है या कम्युनिटी है उसके अंदर दूसरी खवातीन को ट्रेन करेंगे। सो इन दैट वे एक पूरी चेन क्रिएट की गई जिसमें मोर देन 8,000 women वर ट्रेन्ड। ये सिर्फ साउथ पंजाब की बात है। तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी चेन डेवलप हो गई कि इतने सारे क्राफ्ट्स और क्राफ्ट वुमेन वर डेवलप्ड, उनको उस ट्रेनिंग मिली थी, उनको काम समझ आया था कि वो एक प्रोफेशनल लेवल पे कैसे काम कर सकती है। तो उसके बाद फिर मुझे ये सामने समझ में आने लगी बात उसके बाद कि अब उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो ये सारा काम लेके किधर जाए, बिकॉज गांव में बैठकर बहुत मुश्किल है उन खवातीन के लिए कि कहीं वो जाएं और जाकर अपना काम जो है उसको बेच सकें या उससे कोई अपनी इनकम अर्न कर सके। बेसिकली यही हमारा मकसद था उनको ट्रेन करने का। उस वक्त फिर आई टॉक टू साजदा वंडू साहिबा के हमें कुछ करना चाहिए इसके बारे में, बिल्कुल। रियली सैड कि उनके पास कोई ऐसी खास जगह नहीं है, अपॉर्चुनिटीज बहुत थोड़ी हैं। पीपल हु आर वर्किंग देयर बट दे आर सो लाइक बहुत ही थोड़ा काम हो रहा है, इसकी वजह से ज्यादातर लोगों को काम नहीं मिलता। So फिर we came up with the idea and I developed the brand called चारबाग। चारबाग जो है वो उसके पीछे एक बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट था कि 4 हमारे प्रोविंसेस हैं और 4 मेन बाग। सो 4 बाग जो हैं उसमें हमारे मुल्क के वो 4 प्रोविंसेस जो हैं उनके क्राफ्ट्स जो हैं उसमें शोकेस कर सकते हैं। ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स में अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें तो वहाँ पर भी जो क्राफ्ट्स हैं किसी भी कम्युनिटी के या कल्चर में वो उनको बाग का नाम दिया गया है। सो मुझे ये बड़ा एप्रोप्रिएट नेम लगा कि हम अपने ब्रांड को चार बाग कहें जिसके अंदर ये सारे जो हमारे बाग हैं जो कि हमारा विरसा है हम उनको शोकेस कर सकें। सो उस वक्त चार बाग जो है उसको मैंने डेवलप किया, उसके ऊपर किया एंड उसमें मकसद यही होता है कि जो विलेज कम्युनिटीज हैं ना सिर्फ हमारे हम उनके साथ काम करते हैं। मैं शहर के क्राफ्ट पीपल के साथ रेयरली काम करती हूँ। इट इज मेनली फॉर द विलेज कम्युनिटीज ताकि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएं और वो उसमें कुछ अर्निंग उनकी बने। ज्यादा मेरा मकसद होता है कि खवातीन के साथ हम ज्यादा काम करें बिकॉज जो विलेज कम्युनिटीज है वहाँ की खवातीन जो है उनको बहुत जरूरत है सपोर्ट की और ये एक ऐसी चीज है जो वहाँ की हर औरत को आता है बिकॉज ये वो पैदा होते ही उन्होंने लर्न कर लिया ये क्राफ्ट। सो ये ओरली ट्रांसमिट हुआ है उनको। सो दे नो एवरीथिंग अबाउट इट। तो अगर उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें, उनके साथ काम करें तो दे कैन डू रियली रियली ब्यूटीफुल वर्क एंड दैट इज व्हाट चारबाग एम्स टू डू।
Right. And when did you start it? आपने शुरू कब किया, आयशा? चार बाग जो है वो मैंने 2016 के अंदर बनाया था. उससे ठीक. पहले आई वाज वर्किंग इन वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट 8-9 years, जिसमें ये मेरा ये डेवलप हुआ कॉन्सेप्ट कि क्या एक ऐसी नीड है जिसको फुलफिल करना लाजमी है. और दूसरी बात मुझे जो बहुत ग्लेयरिंगली सामने नजर आ रही थी वो ये थी कि प्रोजेक्ट्स तो आते हैं और फिर प्रोजेक्ट्स चले जाते हैं. गवर्नमेंट एफर्ट करके प्रोजेक्ट्स ले आती है और वो उसके बाद फिर ये लोग दोबारा से उधर ही बैठे होते हैं. So true. So opportunities are not there consistently for these people, and they need a little bit of support, and they all learn a very respectable way of living, especially women, if they are supported. So that was one of the reasons के चार बाग जो है बनाया हमने. Right. तो कौन से अब मेनली सिटीज थी जिधर आप गए, थोड़ा पता चले कौन से? शुरू तो जो था वो हमने जब किया था प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट, उसमें 3 मेजर सिटीज थी जिनके ऊपर मुझे कहा गया, बहावलपुर, मुल्तान, डीजी खान, डेरा गाजी. वहाँ के बहुत ही रिच हैं क्राफ्ट के रीजन. तो फिर जो छोटे गांव थे वो भी अंदर शामिल थे. सो इट वाज अ रियली ह्यूज प्रोजेक्ट ऑफ यूनेस्को. उन्होंने किया था उस वक्त 2009 में, आई गेस ये था, जब सही से याद उस आई गेस इट वाज इन 2009. एंड उसके अंदर फिर ये बहुत सारे जो क्राफ्ट्स हैं वो मुझे सामने नजर आए. और मेरा मकसद था कि उनमें देखा जाए कि खवातीन जो हैं वो कौन कौन से क्राफ्ट्स में ज्यादा हैं. तो उसमें नजर आ रहा था कि देवर very good in embroideries, they were textile crafts basically, ना. वो उनका एक फोटे था. तो I have always been interested in textiles, so I kind of took it from there, and I decided कि ये एक ऐसी चीज है जिसको डेवलप किया जा सकता है. आपका मेजर भी टेक्सटाइल्स था ना कि डिजाइन में? नहीं, फाइन आर्ट्स में थी. और इसलिए एक बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी जर्नी है जिसमें मैं निकली हूँ. फाइन आर्ट्स में मैं प्रिंट मेकिंग में थी. प्रिंट मेकिंग से मेजर किया था, और मेरा माइनर था मिनिएचर पेंटिंग. सही. चलो काइंड ऑफ सारा इंक्लाइंड ही है ना, सारा कुछ एक ही चलता है मुझसे. वेरी नाइस. अच्छा आयशा, आपने मास्टर्स अपना फिर एमसीए से दोबारा किया, तो वो वाज देयर अ गैप उसके बाद किया या कि बिल्कुल गैप था. जब मैंने अपना बीएफए वहां से किया था, उसके बाद जैसे सब लड़कियों की शादियां हो जाती हैं मेरी, फिर वही एक कुछ सालों का गैप था. बच्चे हुए, उनको उनकी टेक केयर करनी थी. बट देन I wanted to go back, so I started working in NCA as a research assistant with Lala Rukh, and हमारी बहुत ही मेरी फेवरेट, और बहुत अच्छी थी. बहुत अच्छी थी. वो जन्नत में जगह दे, अल्लाह जन्नत में जगह दे, आमीन. तो लाला रुख के साथ मैं काम कर रही थी, और साइदा वंडली के साथ भी. सो I was kind of taken in by both these great ladies. बड़ा मुझे बहुत सिखाया, और मैं उनकी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उस वक्त. आप कितनी देर रहे थे पूरा मास्टर्स टाइम? यू स्टेड इन पाकिस्तान के बाद के अमेरिका? अच्छा. मैं अमेरिका से बच्चों को मिलने आई हूँ, मैं रहती पाकिस्तान है. ठीक है. पढ़ाती हैं ना ये कॉमसैट्स में, शी इज प्रोफेसर है. हाँ, इस्लामाबाद में. अच्छा आयशा, माय इंटरेस्ट इज कि ये एक बड़ी सदर्न पंजाब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी एक कम्युनिटी है, एंड इट्स रिडन विद
a lot of poverty and hardships, जैसे आप कह रही हैं, and I think this is a great contribution that you're making, कि आप इनको you're trying to lift them up and give them sustainability, कि ये लास्ट करें, ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए कुछ करके और फिर जैसे आप कह रहे हो कि लोग भूल जाते हैं इनको बहुत बिल्कुल जल्दी। तो बिल्कुल पुराना इसमें प्रॉब्लम है। इसमें हाँ, इसमें क्या चैलेंजेस आपने फेस किए जब आपने इनके साथ डील करना शुरू किया? सो दैट is something that interests me and Sameera as well, and I'm sure the audience wants to know. There were great challenges Yeah. because पहली तो बात ये है कि क्राफ्ट्स के बारे में कोई नॉलेज इतनी हमारे मुल्क में थी भी नहीं, जिसको बैकग्राउंड में रख कर उसको देखती और कहती कि हम इसको देख लेंगे और हो जाएगा ना। यू Right. also a student going in there, learning from them and trying to make them learn new things. So एक बहुत बड़ा चैलेंज था मुझे। उस वक्त जब मैडम साजदा ने कहा कि आप वहाँ जाकर ये इनके साथ काम करें, बाद में प्रोजेक्ट्स में she asked me to train them as and I worked as a principal designer in many projects of UNESCO. For you know उनको ट्रेनिंग देने के लिए। Right. उस वक्त जो मेजर प्रॉब्लम ये था कि खवातीन जो हैं उनका माइंडसेट बहुत ज्यादा सेट है कि इसी तरह उन्होंने काम करना, उनको एक नए तरीके से काम करने की, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्वालिटी कंट्रोल एक मेजर इशू था। लोगों को आइडिया नहीं था कि जो अगर आप किसी के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी क्वालिटी कैसे कंट्रोल करनी है, उसको गंदा नहीं करना, उसमें जो आप यूज कर रहे हैं मटेरियल वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, लेकिन जब आप कहीं बाहर ले जाकर अपना काम किसी के आगे रखते हैं तो ये चीजें बहुत बड़ी इश्यूज वहां पे नजर बिल्कुल बिल्कुल want to absolutely. Chaharbagh में I actually focused on all these issues कि हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर हमारा ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है कि वो हाईएस्ट क्वालिटी का कपड़ा होगा। जो भी आपने, अगर सिल्क है तो बेस्ट सिल्क लगाएंगे, प्योर। अगर वो कॉटन है तो बेस्ट कॉटन लगेगी। और आई मीन इस तरह करके हमने हर चीज में उसको, अगर धागा है तो वो सिर्फ टैंकर का लगेगा, हम कोई और यूज नहीं करेंगे। सो इस तरह की चीजें जो हैं वो मैंने उनके लिए बार सेट की कि ये आपने इसमें ये करना है। If you want to work with me, you have to learn these things. So obviously, कई लोग जो हैं they couldn't do it, but many ladies they really did so well. And now मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आपने सिर्फ मेरे लिए काम करना और किसी के लिए नहीं करना। I actually encourage them कि ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, इससे अगर आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं please take them, so that and they have become quite a good business women and they are doing Excellent. कई तो अब वो बायर ट्रैवल करके कराची जा वाह that is I feel so happy and good about it कि they are doing so well। हमारी everything provide करते हैं, they make the stuff for you। जी इन चहारबाग हम मटेरियल खुद देते हैं टू मेक श्योर कि उनका जो क्वालिटी है उसको मैं कंट्रोल कर सकूं। और बट उसका एक इम्पैक्ट ओवरऑल जो मुझे नजर आया है वहां पे काम में, वो ये है कि ओवरऑल काम बहुत इम्प्रूव कर गया। पहले जब मैंने पहले जब 2008-9 में मैं वहां गई थी पहली दफा, तो जो मैंने फोटोग्राफी की, जाके मार्केट के सर्वे किए, ये वो, तो जो काम था दैट वाज रियली रफ एंड लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ चुनरी बहुत मोटा दाना और बहुत रफ काम था। लेकिन अब जो चुनरी बाजार में भी जाती है उसकी क्वालिटी इज वे डिफरेंट। एंड वो इन्हीं वर्कशॉप्स में से जो खवातीन गुजरी हैं उसकी वजह से ये चेंज आया है। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो चुनरी ओवरऑल
वो जिधर भी अब बेचें, जो भी करें, वहाँ पे एक बहुत बड़ा उनका चुनरी का गांव है जहाँ सिर्फ वो चुनरी करते हैं सारे। उस जगह का नाम अब्बास नगर है, इट्स इन नियर अच्छा, भागलपुर। तो राइट राइट। वहाँ पे तो काइंड काफी ऑफ आपने उनकी जो स्किल थी उसको और पॉलिश कर दिया ना, ये फर्क पड़ा आपके जाने से। वो उनको आती थी, उनको हाँ, अवेयर कर दिया कि आप इसको इम्प्रूव करके मार्केट में लाएंगे तो ये बिका। आई हैव सीन वो दाना बहुत बारीक हो गया है, और ओवरऑल मार्केट में भी जो इस वक्त उनका आम मार्केट में वो बेच रहे हैं उसकी बहुत बेहतर है। हम्म, सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मेरे लिए तो जो अलहदा है वो बाहर भी अब मुझे उसका, मैंने एक दो दफा जाके वहाँ पे मार्केट सर्वेस किए हैं या करवाए हैं, तो ओके। वी हैव कम टू नो कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। गुड गुड। अच्छा, कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट कि आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? सो टाई एंड डाई है, और क्या क्या, चुनरी है? जो है, it is kind of a tie and dye ओके, technique, which is ठीक। like really old. मतलब जो अजंता अलोरा केव्स हैं उसमें भी tie and dye या चुनरी की आपको नजर आ राइट। पेंटिंग में। It's one of the oldest craft which is from this part of the world. And then we also have अजरक, जो कि अगेन बहुत पुराना क्राफ्ट है। जो इंडस वैली के प्रीस्ट हैं उन शॉल ओढ़ी हुई है, उसके ऊपर जो डिजाइन्स हैं वो हमारी अजरक में मौजूद है। एक्चुअली आई प्रेफर कि हम वो पुराने डिजाइन्स को कराएं, ना कि जो आजकल के नए उन्होंने बनाए हैं। आई लाइक ओल्ड डिजाइन, तो मैं उनके साथ ज्यादा काम करना पसंद करती हूँ। राइट राइट। अलावा हम वेरियस काइंड्स ऑफ एम्ब्रॉयडरीज कराते हैं, जिसमें मेन देयर इज दिस थिंग के डिफरेंट गांव हैं जहाँ पर डिफरेंट किस्म की टांगे जो हैं वहाँ मशहूर हैं कि वो यहाँ यही करते हैं। जैसे डेरा गाजी खान, जिसको डीजी खान कहते हैं, राइट। वहां पर बहुत ज्यादा कच्चा टांका होता है। का शैडो वर्क। जी, कच्चे टांके के अंदर बहुत बारीक छोटे छोटे टांके होते हैं, और उससे पूरा वो बनाते हैं। जी बिल्कुल, और पूरा वो भर देते हैं। और ये एक ऐसा है टांका जो और लोगों को बनाना नहीं आता, क्योंकि उसमें बहुत बारीक काम होता है। फिर वहां पर एक और जो बहुत ज्यादा होता है, जिसको हमारे लोग बहुत, सबको पता है उसका, वो है चिकनकारी। तो बिल्कुल। शैडो वर्क जिसकी आप बात कर रही हैं, तो वो चिकनकारी जो है वहाँ बहुत अच्छी होती है। और वहाँ पे गाँव हैं काफी जिनमें खवातीन यही काम करती हैं, सो उनके साथ हम काम करते हैं। और उधर वेरियस मास्टर ट्रेनर्स हैं जो अपने साथ खवातीन को लेकर, और मकसद यही होता है कि वो सारी काम करें और सबको कुछ मिले। और फिर जब प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचते हैं तो उनको फिनिश करने के लिए भी हम थोड़ा सा उस पे काम करते हैं, ताकि जब आप तक आए तो वो इतना अच्छा हो और इतना वैल्यूबल हो कि आप उसको चेरिश करें और उसको यूज करें सही से। ठीक ठीक। अच्छा, आयशा, आई नो कि अभी तो आप ऑनलाइन आपका स्टोर है, राइट, जहालबाग का, तो एनी प्लान्स कि आप एक कोई आउटलेट भी खोलें कहीं पे, पाकिस्तान में या अमेरिका में या कहीं भी? देखें, अभी तक 4 बार में ना मुझे खुद से लीड किया है कि मेरी ये नीड है, अब ये करो। अभी पहले शुरू में मैंने यही करती थी। मैं जब 4 बाग नहीं था कि मैं अपने घर के लॉन में सब खवातीन को बुला लेती थी कि ले आओ अपने कपड़े, और मैं वहां सबको बुला लेती थी कि जी आ जाओ, आके ले लो, और डायरेक्टली इनको पे कर दो और ये चली गई। तो एवरीबडी वुड मेक सम मनी एंड दे वुड बी हैप्पी कि जी हमारा कुछ हो गया। लेकिन वो भी आप कितनी दफा कर सकते हैं? वो एक ऐसा है कि आप साल में 2 दफा किसी को बुला लेंगे, इतना तो नहीं होता ना। तो ये कांस्टेंट जो होता आप काम करें वो डिफरेंट होता है। तो चहारबाग के को हमने उस वक्त जब इसमें शुरू किया तो मेरा मकसद ये था कि इनकी कांस्टेंट इनकम जनरेट हो सके और
खातन जो है कॉन्स्टेंटली उनको काम मिले और ये उस काम से अपने घरों का खर्चा चला सके। पूरे विलेजेस जो हैं उनकी कम्युनिटीज में खवातीन जो हैं उनको कोई ना कोई काम मिलता रहे। मेरा इसमें ये भी एक कोशिश होती कि एक प्रोडक्ट के अंदर मैं एक से ज्यादा क्राफ्ट डालूं। अगर उसमें मैंने चुनरी कराई है तो साथ में मैं कहीं उसमें कहीं कोई एम्ब्रॉयडरी भी डाल दूंगी। सो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर 2 से 3 डिफरेंट क्राफ्ट पीपल आर वर्किंग। जैसे हमारे पास बहुत ही जबरदस्त ब्लॉक प्रिंटर्स हैं, तो वो ब्लॉक प्रिंटर्स जब काम करते हैं उनके साथ आई ऑलवेज ट्राई टू मिक्स इन सम अदर क्राफ्ट सो दैट वो ज्यादा स्पेशल और वैल्यूबल एक चीज जो है बनकर सामने आए, तो वो आई ट्राई दैट। लेकिन चारबाग की जो एक सबसे इम्पोर्टेंट मकसद जो है जिसकी वजह से चारबाग इज वेरी इम्पोर्टेंट, वो ये है कि वी आर ट्राइंग टू प्रमोट स्लो फैशन। स्लो फैशन ये है कि एक ऐसी चीज आपके लिए डेवलप की जाए जो इतनी स्पेशल हो जिसको आप चेरिश कर सकें फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज वो हैंडमेड है टोटली, और उसके अंदर ईच प्रोडक्ट इज यूनिक, और उसकी आपके पास जो चीज आई है वो आप ही के पास है, वो और किसी के पास नहीं होगी, क्योंकि दो जो है आपस में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो हाथ से बना हुआ है ना, ये मशीन का काम नहीं है। तो उसमें जो खास चीज है वो यही है कि आप उसको पहने और स्पेशल फील करें, एंड यू कैन चेरिश इट, और मे बी यू कैन, जैसे पुराने वक्तों में होता था, आई नो माय मॉम, मेरी अम्मी के बहुत से कपड़े हैं जो मैंने रखे हैं, बाद में उनको ठीक करके पहना, बिकॉज वो मुझे थे। तो ये भी आगे ये भी अपने बच्चों को आगे दे सके। बहुत से हमारे प्रोडक्ट्स हैं वी शॉल्स व्हिच आर वेरी वेरी स्पेशल, और हमारा वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट सेलिंग चीज इस वक्त वो हमारी शॉल्स हैं, जो अजब सिल्क की शॉल्स हैं, और यूजुअली लोग शादी या कोई बहुत ही फॉर्मल फंक्शंस के लिए ऑर्डर करते हैं। हम ज्यादातर ऑर्डर लेते हैं बिकॉज वो थोड़ी एक्सपेंसिव बनती हैं, या कि बहुत स्पेशल है, तो बहुत से लोग हमसे वो ऑर्डर पे बनवाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी प्राइस रेंज भी बताए ना, ताकि पता चले कि सबके लिए अप्रोचेबल है, अफोर्डेबल है। हर तरह का प्राइसेस हैं, लेकिन हमारी प्राइसेस जो बाजार में आपको बाकी डिजाइनर ब्रांड्स हैं उनसे तो बहुत कम है। आई ट्राई टू कीप माय प्राइसेस डाउन बिकॉज दैट इज रीजन कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट्स आपको जो पाकिस्तान के टॉप ब्रांड्स हैं उन्हीं में ऐसी क्वालिटी मिलती है, लेकिन वह प्राइसेस मैंने बिल्कुल नहीं रखी। मेरी कोशिश यह है कि जितने ज्यादा लोग हमारा काम ले सकें लें, क्योंकि मकसद यह है कि लोगों तक काम पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। और समीरा, वेबसाइट भी हम शेयर कर रहे हैं इस शो में, तो लोग खुद भी जाके देख सकते हैं, ताकि आराम से बैठ के देखें कि क्या मजे मजे के प्रोडक्ट्स हैं, कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, और प्राइसेस खुद भी देख सकते हैं, सो दे कैन डिसाइड। एक लास्ट क्वेश्चन अबाउट चहारबाग, क्योंकि आप ऑनलाइन कर रहे हो आयशा, तो इसके क्या चैलेंजेस हैं ऑनलाइन के, आपको पर्सनली कोई फील हुए हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में तो आई फील के लोग इतने प्रिपेयर्ड नहीं हैं, और कई जगह हैं जो बड़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, कई लोग हैं जो बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड हैं फॉर ऑनलाइन स्टोर्स एंड ई कॉमर्स, तो आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में? अभी एक्चुअली शुरू में तो इतना कोई अच्छा रिस्पांस नहीं था, बिकॉज दूसरे पाकिस्तान में ऑनलाइन इतना भी रिवाज नहीं, लेकिन कोविड का एक फायदा तो हो गया ना कि दैट्स ट्रू। काम कर सकते हैं। इससे ये हो गया कि अब हमें बहुत से लोग अप्रोच कर लेते हैं, या अगर आप ऑनलाइन नहीं जाना चाहते तो दे कैन जस्ट मैसेज अस ऑन हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे, तो वो उससे वी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड बैक, एंड वी ट्राई टू मेक श्योर कि हमारा जो भी प्रोडक्ट उनको चाहिए है उन तक हम जल्द से जल्द पहुंचा दें।
ठीक ठीक। नहीं, वैसे बहुत अच्छी बात है आप कर रहे, यही तो मेन है विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो कर रहे हैं, क्योंकि ये औरतें जो वहाँ बैठी हैं घरों में, तो फिर समझो ना, डोमेस्टिक वायलेंस ही है, कितनी चीजें हैं, फाइनेंशियली वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इस तरह फिर वो लोग थोड़े स्ट्रांग होते हैं, फिर उनके पास स्किल्स हैं ये, तो वो जो स्किल्स उनकी किसी ने पॉलिश नहीं की होती है, तो लेकिन उसमें आप बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हो, और ये हमें करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी औरतें हैं वही तो मेन मतलब अपब्रिंगर हैं बच्चों के, फिर वो उनकी अच्छी परवरिश करेंगे तो और अच्छे लोग आएंगे। तो आपका काम जो है कि सारा देखो ना, स्प्रेड है सब, आप चुनरी बना रहे हो, ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे हो, और कढ़ाई के अंदर हो, प्रिंटिंग हो रही है, तो कितने लोगों को काम मिल रहा है, तो उससे कितने घर जो हैं वो खुश हैं, और कितने वो एक किस्म की आपके लिए दुआएं हैं उनकी तरफ से, है ना। बस ये मेरे तो कोशिश, छोटी सी एक एफर्ट है, इतना बड़ा भी हर बार नहीं हुआ कि हम, जो मेरा ख्वाब होगा, है कि बहुत बड़ा हो हो जाए जाएगा। और पूरे पाकिस्तान में हम बहुत और लोगों की मदद करें और उनके साथ काम करें। हाँ, लेकिन इंशाल्लाह। जो हम बेस्ट कर सकते हैं अपनी बिल्कुल। वक़्त और औकात के बस आप अपना काम मुताबिक, करते जाओ, आगे देखा जाएगा। हाँ, आप लगे रहो। लगे बिल्कुल। हैं, लगे हुए हैं। हाँ, कभी हार नहीं मानी। बहुत से टाइम ऐसे आए जब लगा कि बस अब तो कभी सॉरी, आप जाते हो, ये लोग औरतें जो काम करती हैं, कभी उनको कोई प्रॉब्लम्स हुई है फैमिली की तरफ से, ओ तुमने ये काम नहीं करना, हम्म। तो क्या आपके साथ कोई प्रॉब्लम बहुत किसी ने क्रिएट की हो, बहुत तो ज्यादा क्या था ये। आप ऑटो को खराब कर रही हैं, ये वो इस तरह का कोई इंसिडेंट। जी बहुत आयशा। ज़्यादा ऐसे होता था शुरू में जब मैं जाती थी, तो ट्रेनिंग पे आने के लिए उनको घर से इजाज़त नहीं मिलती थी, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा, वहाँ पे ज़्यादातर ख़वातीन पर्दा करती हैं, और हमें उस चीज़ को समझना चाहिए और उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल rather बिल्कुल। than कि हम उसको फाइट करें। राइट। उसका वे अराउंड ढूँढने की ज़रूरत होती है ना, कि आप उनके जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उनको साथ लेके चलें तो सब कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो हमने फिर उनके जो घर के मर्द हज़रात थे, उनको यही कहा कि आप साथ आ जाएँ, आप आकर बैठें, देखें कि यहाँ क्या हो रहा है, तो आप खुद ही कंफर्टेबल हो जाएँगे। सो बहुत सारे मर्द हज़रात साथ आते थे, एंड दे वुड सिट ऑन द साइड टू सी के हम उनको क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं। राइट। देयर नथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन देयर, या कोई बात है। तो उससे ये हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता many men became more comfortable, and they started allowing their women to of their houses to come and take part in the workshop. फिर एंड में तो मुझे सिफारिशें आती थी कि इनको भी बुलाते हैं। हाउ मेरा वंडरफुल। कि सो प्लीज ले आए, जिसने आने आ जाए। It is open for everyone, जो आ तो सकता है। आपने फिर माइंड्स चेंज किए उनके, दैट्स वंडरफुल कि सोसाइटी में आप कुछ चेंज लेके आए हो, और इंशाल्लाह और भी आएगा। इंशाल्लाह। जी, इसमें आई वुड लाइक टू से वंस अगेन कि यस। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू साजिदा हैदर वंडल, जो जिनके साथ मैंने ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और काम किया उनके अंडर मैंने, और उस वक़्त उनके साथ वो ना होती तो शायद मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी अवेल करना इम्पॉसिबल था। शी इज़ डूइंग ग्रेट जॉब, और वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है था ट्रस्ट फॉर हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंडर उन्होंने बहुत बहुत अमेजिंग काम किया। आई वर्क विद हर थ्रू हर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। जो ये सारे प्रोजेक्ट्स किए, और उसके बाद अभी भी चारबाग में वो मेरी पार्टनर हैं, और हर चीज में हम एक दूसरे से पूछ कर मशवरा करके करते हैं कि ये कैसे इसको करना है। तो शी इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ ऑल दिस, एंड ये उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, एक आपने जो कलर्स बीच में यूज किए हैं, यू नो आई एम अ फैन ऑफ योर चहारबाग के जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, सो आई लव द कलर्स जो आप सिलेक्ट करते हो। तो आई जस्ट वांटेड टू नो, आई एम क्यूरियस के वो उसमें आपका कितना पार्ट है, जो आपके वर्कर्स हैं उनका कितना पार्ट है,
तो who decides कि उसमें कलर सिलेक्शन क्या करनी है, और डिजाइन तो ऑब्वियसली तो आपकी तरफ से भी आ रहा है, बट कितनी परसेंटेज आई वुड से कि उन वर्कर्स की तरफ से भी आती है बीच में? अच्छा, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सादिया, जो अच्छा कि आपने पूछ लिया। हमारा तरीका ज़रा डिफरेंट है अपने वर्कर्स के साथ काम करने का। I राइट। do give them an idea कि वो ये डिज़ाइन है, ये मटेरियल्स हैं और ये आपने बनाना है। लेकिन आई डू गिव देम अ बिट ऑफ लीवे कि वो उसको ओन करें और ज़्यादा एंजॉय करके बनाएं। सो इफ दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद सम कलर स्कीम और सम डिज़ाइन, तो वो मेरे से बात कर लेती हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमारी अभी एक कलेक्शन इन द फील्ड है, और मुझे मैसेज आया व्हाइल आई एम स्टिल इन अमेरिका कि जो हमारी वो मास्टर ट्रेनर है, शी इज नॉट हैप्पी विद द कलर्स दैट आई हैव सेंट। अच्छा। तो देन आई जस्ट टोल्ड हर कि उन्हें कहें कि वो मुझसे शेयर करें वो क्या चाह रही हैं, सो दैट वी ठीक। कम टू सम काइंड ऑफ कंसेंसस जिसमें वो खुश हैं। Or if it works for us, तो I'm open to it. I want them to feel कि वो उसका पूरा हिस्सा है जो डिजाइन का राइट। उसमें। कोई मैसेज जो आप हमारी यंगर जनरेशन को देना चाहेंगी? हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है मुझसे। तो उसमें मेरा तो एक ही है कि बी काइंड टू अदर्स, एंड बिल्कुल। ये कि गिव बैक टू द सोसाइटी। यस। कोशिश करें जो भी आपकी लेवल है। जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खोल लें तो आप गिव बैक कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आज सुबह उठकर मैंने एक अच्छा काम करना है, इससे स्टार्ट लें। आप फैसला कर लें कि मैंने रोज एक कोई अच्छा काम करना है। इट कैन जस्ट बी सिंपल कि किसी घर में किसी को कोई मदद कर दी, या सड़क पे जा रहे हैं तो गाड़ी रोक कर किसी को पार करने की जगह दे दी। बहुत सादे सादे एक्ट्स हैं जो कि हम सब कर सकते हैं, और वो अगर हम करना शुरू कर दें तो काइंडनेस और टॉलरेंस इन द सोसाइटी विल डेवलप, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक एट दिस टाइम इन आवर लाइव्स, के हम टॉलरेंट बने, काइंड बने। बिल्कुल। और बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज जो मैं समझती हूँ हमें बनने की जरूरत है कि हम अच्छे ह्यूमन बीइंग्स बने, रादर देन कि हम प्रोफेशनल्स बने, जो कि एक ट्रेंड बड़ा बना हुआ है कि जी हम जबरदस्त प्रोफेशनल्स हैं। इट्स बेटर टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग समटाइम्स देन टू बी टू मच ऑफ अ प्रोफेशनल। अच्छे ह्यूमन बीइंग अगर आप बनने में कामयाब हो जाएं, जो कि सारी उम्र का काम है, एक दिन सुबह उठ के नहीं आप बन जाते, यू हैव टू वर्क बिल्कुल। फॉर इट। तो you can do a lot of good for a lot of people by just being kind to them. Don't have to go and spend money, just be kind to people. That's all I say. Bilkul, that's a lovely message and so from the heart and so full of integrity. And I'm sure it's going to resonate with a lot of people who will watch this message that you have given them. And अगर ये कोई follow कर ले तो फिर तो lives सबकी improve हो जाएंगी. So दुआ करते हैं कि follow करें लोग आपका message और ये लोगों तक reach करें. और आज बहुत बहुत मजा आया आयशा आपसे बात करके। आपने अपनी जो सारी बातें बताई हैं, जो एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, एंड स्पेशली लव जो आपने अपने पर्सनल लाइफ में से थोड़ा सा हमें जरा सा बताया है अबाउट योर मदर एंड योर खाला, एंड इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. Thank you so much for coming over and giving us your precious time all the way from the United States. Thank you so much. And for the audience, I would like to just remind everybody, please do visit Chahar Bagh की website. हम उनका जो URL है वो आपके साथ share कर रहे हैं, जिसको आप लोग URL भी कहते हैं. So please do visit it and do look at Aisha's work. And also, it's not just you, it's also Madam Sajida Vandal, right?
आप दोनों का है ना? बिल्कुल। तो बोथ आर अमेजिंग लेडीज। एक से आप अभी मिल लिए हैं, दूसरी तो एक आइकॉन है हमारे एनसीए के वर्ल्ड में। तो बहुत लकी होंगे अगर आप उनको मिलने कभी और उनसे आप बात कर सकें। शी इज एन अमेजिंग पर्सनालिटी एंड आई कैन सी एग्जैक्टली व्हाई she has chosen you, Aisha, to do this with her. It was wonderful talking to you. Thank you so much for coming. Thank you so much, Saadia. It was lovely talking to you and Sameera. Same here. Allah Hafiz from both of us. Allah.